شہربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ آپ کے سامنے شہربانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا کریں۔ اے قادر خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے لطف کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہماری خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، لینٹ کے سیزن میں ہم آج دوسرے اتوار سے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعریف کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدل اور پھول میں شریک۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی، خاندانی زندگی، ازدواجی زندگی، روحانی زندگی، معاشرتی زندگی پر غور کرتے ہوئے اپنی اپنی خطاؤں، اپنے اپنے قصوروں کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہوئے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور کہیں، آیا آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے فرض کے خلاف گناہ کیا ہے، دور کی بجائے ہم تیری مدد کریں، ہم پر یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح کے ذریعے میں پاک و صاف کر، ہماری ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کی قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ہم سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو ہو سکے وہ مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں اور مل کر زبور نمبر 31 گائیں۔ میری آس ہے تیرے ہوتے، اے یہوہ پاک خدا۔ سیاست کنونشن کی کتاب زبور نمبر 31 خدا کی ہم کو تعریف کریں گے۔
تو بھلا تیری شفقت اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. تیرے خزانے لبریز ہیں, تیرے پاس کس چیز کی کمی نہیں ہے, تو سب کچھ کرنے پہ قادر باپ ہے. اس وقت تیرے سامنے پیش ہوتے ہیں, آپ کو سجدہ کرتے ہیں, ہمیں قبول و منظور اپنے دروازے کھول دیں. تیرا شکر گزارتے ہیں زندگی کے لیے, زندگی کی تمام بڑی برکات کے لیے جو تم نے مانگی بغیر بخشی. تم نے سب سے بڑھ کر اپنا زندہ کلام بخشا, اپنے بیٹے کو اس دنیا بھیجا تاکہ ہم ہلاک نہ بلکہ میں شک نہیں پائیں. آپ کے کلام تیرا شکر گزارتے ہیں تیرے تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت تیرے گھر میں موجود ہیں. خدا تو اپنا فضل اللہ بڑھا, ایک ایک کو برکت دینا. آپ سے خداوند جو لوگ تیرے گھر میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی جلد اپنے گھر میں لا تاکہ وہ بھی تجھ سے نعمتیں برکتیں حاصل کر سکیں. پاک تیرا خداوند آج کا جب تیرا زندہ کلام پیش کیا جائے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آپ سے خداوند تیرے بندہ نے جتنی مناجاتیں ہیں خدا تیرے سامنے رکھی ہیں, خدا تو ان کو سن اور قبول کر. آپ سے خداوند آج کا تیرا زندہ کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. پوری دنیا میں جہاں کہیں تیرے نام سے تیرے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کو ہر طرح کی مشکل مصیبت سے بچانا. خدا جو بیمار ہیں ان کو شفا دینا. تو شافی باپ ہے, تو سب کچھ کرنے پہ قادر باپ ہے. ہماری رہنمائی کر, ہماری خطاؤں گناہوں غلطیوں کو بخش دینا. اپنا فضل اللہ ہاتھ ہم پر بڑھائے رکھنا. حفاظت کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارے ساتھ ہو. سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. Jai
نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں، نوٹ کیجیے۔ آج کا پہلا ورد بائبل مقدس کی پہلی کتاب، پیدائش کی کتاب۔ کھولیں ضرور، بائبل پڑھی ہیں۔ جو نہیں پڑھتے نا لوگ، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ دکھائیں تاکہ آپ کے کلام مقدس کی تلاوت کریں۔ بڑے آسان الفاظ ہیں اس پیسے میں۔ پیدائش کی کتاب 22واں باب، 12ویں سے لے کر 18ویں تک 6 آیتیں ہیں صرف۔ جو نہیں پڑھتے لوگ وہ ہاتھ دکھائیں، پڑھا کریں، شاباش، ٹھیک ہے بیٹا پڑھیں۔ آج کا جو پہلا ورد ہے پیدائش کی پہلی کتاب، بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش 22واں باب، 12ویں سے 18ویں۔ پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 21 اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 30۔ پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 21 اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 30۔ پیدائش کتاب 22واں باب، 12ویں سے 18ویں۔ آج کا دوسرا ورد رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، 8واں باب، 31ویں سے 34ویں آیت تک۔ رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، 8واں باب، 31ویں سے 34ویں آیت، صفحہ نمبر 147۔ جو پرانی بائبل ہے آپ کے سامنے پڑھی، جو نئی بائبل ہے اس میں صفحہ نمبر 215۔ رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، 8واں باب، 31ویں سے لے کر 34ویں آیت تک۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے، پہلی 2 آیات۔ جائیں کس کے پاس گناہ گار، یسوع ہے زندگی، موت سے کرتا ہے وہی پار، یسوع ہے زندگی، زندگی روحانی، زندگی غیر فانی، بخشش عجیب، راہ صلیب، لے لو تم زندگی۔ گیت نمبر 114۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، 8واں باب، 31ویں سے لے کر 38ویں آیت تک، صفحہ نمبر 42۔ جو پرانی بائبل ہے صفحہ نمبر 42 اور جو نئی بائبل ہے اس میں صفحہ نمبر 61۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، 8واں باب، 31ویں سے 38ویں آیت۔ نیلسن شہزاد اس پیسج کی تلاوت ہمارے لیے کریں گے۔ چند ایک ضروری اشارات ہیں۔ کبھی اگر آپ کے دل میں یہ خدمت کا جذبہ ہے، ہم آپ کو انکریج کریں گے، آنے والے دنوں میں آپ کو ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے تاکہ آپ خاص سنڈے اسکول کی اس خدمت کو سیکھ سکیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بڑی خدمت ہے، شاباش۔ آج خدا آسمانی باپ، ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے بڑی عاجزی، انکساری، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ان بچوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ خدا کے خادم ہوتے ہیں، ان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ سنڈے اسکول کی خدمت بہت اہم خدمت ہے۔ چھوٹی زندگیوں کو سکھانا مشکل بھی ہے، لیکن جب تیری قوت ملے، تیرا پاک روح رہنمائی کرے، تو پھر ہم ان بچوں کی بہتر طریقے سے نگہداشت کر سکتے ہیں، انہیں مسیح کے پاس لا سکتے ہیں۔ میں نام بنام بچوں کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں۔ جب یہ اس خدمت کے لیے خود تیار ہو رہی ہیں، ہمیں انتظامیہ کو حق پر دانش فہم دے تاکہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں اور بچے ان کے وسیلے سے نئی زندگی کا تجربہ حاصل کر سکیں۔ موجودہ حالات میں سارے بچوں کو اپنی پناہ ملے۔ میں خدا کے خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے آپ چاروں کو برکت کی دعا دیتا ہوں۔ آپ کو اس اہم خدمت کے لیے مخصوص کرتا ہوں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے برکت کا باعث بنے اور آپ بچوں کے لیے ماڈل نمونہ ہو۔ آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، آپ کا ایمان، آپ کا چال چلن دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہم کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ تصویری جھلکیاں دیکھیں گے۔ کلام سے پہلے پیدائش 22واں باب، 12ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے: پھر اس نے کہا کہ تو اپنے ہاتھ لڑکے پر نہ چلا،
اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوکھتی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ پاک کلام کے بڑے جناب ہم سب کی بات کرتا ہے۔ آمین۔ آج کا دوسرا بیت کلام مقدس کی تلاوت ہوگی 31ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا کی دائیں طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آئیں گیت نمبر 114 کی پہلی 2 آیات ہم سب مل کر گائیں گے۔
मुक़द्दस मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 8वां बाब 31वीं आयत से लेके बाब के आखिर तक। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सदाकाहिर और फकीर उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। शहरबानी की तरतीब की किताब मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर पाक पर जो आसमान ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, औलाद से बेशतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मासूम नहीं बल्कि मौजूद, उसका बाप का एक ही जबर है, उसके वसीला से कुछ से बनी वो हमारे लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया और उसी की तरफ से हमारी से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतूस कर उसके हाथ में हमारे लिए सलूबी हुआ, उसने उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाप में जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जलाल के साथ जिंदों और मजदूर की अदालत के लिए फिराने वाला है, उसकी सल्तनत खत्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ इस पर जो खुदा जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप बेटे के साथ है, उसके बाप बेटे के साथ होती है। वो नबी की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम दूसरी पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बख्शिश का जो गुनाह की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मदद किया और आए जहान की याद का इंतजार करता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुकद्दस दिन के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरे लोगों के लिए, इनकी मौजूदगी के लिए, इस चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, इस मुल्क के लिए। अपने कलाम के वसीले से हम सबको रूहानी ताजगी दे ताकि हम इस लैंड सीजन में अपनी खुदी से इनकार करते हुए इस समाज में जहाँ तूने हमें रखा है अपने किरदार से गुफ्तगू से जाने जाएं कि हम मसीही हैं। अपने खादिम के मुंह में अपना कलाम दे, यीशु नाम में जमाएं, बैठ जाए। जब तस्वीरी झलकियाँ हैं और फिर उसके बाद संडे स्कूल की टीचर्स अपने बच्चों को लेके ऊपर जाएंगी। आज से संडे स्कूल का आगाज कर दिया गया है। वालिदैन से दरख्वास्त है कि बच्चों को मास्क जरूर दें ताकि वो मास्क पहनकर बैठें। आज चूंकि लेंट सीजन का रोजों के अय्याम का दूसरा इबार है और जो तीनों हवाले पढ़े गए हैं, इसमें जो अहम बात है वो अपनी खुदी से इनकार करना, अपनी स्लीप उठाना और अपनी खुदी से इनकार करना। खुदी क्या चीज है कि मैं ही बड़ी चीज हूं, मैं और आप कुछ नहीं। ये जो क्राइस्ट का लफ्ज है ना,
यीशु मसीह के बारे में जो अल्फाज हैं, अगर यीशु मसीह मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में ना हो तो फिर मैं कुछ भी नहीं। लफ्ज़ है क्रिश्चियन। मैं एक वीडियो देख रहा था किसी की, तो वो बड़े शौक से लेडी बता रही थी कि मैं पहले क्रिश्चियन थी, अब मैं मुस्लिम हो गई। उसको ये भी नहीं पता था क्रिश्चियन होता है क्रिश्चियन नहीं। मैं पहले क्रिश्चियन थी, अब मुस्लिम हो गई। उसने खुदा के कलाम को ना सुना, ना वो शख्सी तौर पे यीशु मसीह को जानती थी, और ना वो क्रिश्चियन थी। जो पूरा लफ्ज़ है ना क्रिश्चियन, CHRISTIAN, तो क्राइस्ट को हटा दे तो आगे रह जाता है I am nothing, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है यीशु के बगैर। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। खुदा ही हमारे खानदानों का सरबराह है, मसीह ही मेरे और आपके खानदान का सरबराह है। अगर वो ना हो तो खानदान मुकम्मल नहीं होता। अब्राहम, जो अब्राम से अब्राहम हुआ, उस पे एक सख्त आजमाइश आई, और खुदा की कलाम में लिखा है, जो लोग दुख सुख कर रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं गैलरी में भी। चंद बातें हैं 10 मिनट के लिए, ये आपके काम आएंगी, क्योंकि जिंदगी मुश्किलात, परेशानियों और दुखों से घिरी हुई है। और कलाम मुक़द्दस में जो हवाला है दोबारा पढ़ना चाहता हूं, जो बाद में आए हैं। 12वीं आयत में पढ़ने लगा हूं, 22वीं आयत की 12वीं आयत। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है। कैसे पता चलेगा कि मैं और आप खुदा से डरते हैं? मैं और आप नहीं डरते। हम तो बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें खुदा को हम कुछ समझते नहीं, अमल दखल नहीं होता, आप उससे नहीं डरते। अब्राहम कौमों का बाप, ईमानदारों का बाप, इतना बड़ा ईमान, एक ही बेटा हो, इकलौता बेटा हो, इतने सालों के बाद मिला हो, और वो खुदा की बात को मान ले। मैं और आप खुदा की बात को मान, खुदा को मानते हैं हम सब, पर खुदा की एक भी नहीं मानते। खुदा को मानते हैं और खुदा की एक भी नहीं मानते। अब्राहम को कहा, उसने उस पर अमल किया, ताबेदारी। और जब ऐसा हुआ तो खुदावंद ने कहा, अब्राहम तो अपने बेटे पर हाथ न चला, इसलिए कि तुझे अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। हम अपने बच्चे की बात हो ना, फिर उसकी हिमायत करते हैं। ये मेरी भी और आपकी भी, सबकी फितरत में शामिल है। जो अहम बात आगे हुई, अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मकाम का नाम, उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा। हम बड़ा बोलते हैं ये लफ्ज़, पता नहीं है क्यों रखा, वजह क्या थी? यहोवा यिरे क्यों ये नाम रखा? इसलिए कि ऐसी जगह पर जहां कुछ भी ना हो, खुदा आपको मुहैया कर दे। मेंढा था नहीं, सोच में भी नहीं था कि ऐसी जगह पे होगा, खुदा ने मुहैया कर दिया, खुदा ने दे दिया। उसके बदले में जब वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार था, छुरी चलाने के लिए तैयार था, अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा। और एक गीत खुदा के खादिम पर जिसकी सरोश, यहोवा यिरे सब कुछ मुहैया करता है। इस आयत में पढ़े, लिखा है यहाँ पे, उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा। चुनांचे आज तक ये कहावत है
کہ खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। आप किसी भी जगह चले जाए, जैसे भी हालात हो, खुदा मुहैया करता है। यहोवा यीरे, डोंट वरी, अगर खुदावंद मेरी तरफ है तो कौन मेरा मुखालिफ है? खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं करने का इंसान मेरा क्या कर सकता है? लेकिन हमने आज इंसानों को, मैं आप शख्सियत प्रस्त हो गया, मैं भी शख्सियत प्रस्त हो गया, खुदा प्रस्त नहीं है, खुदा प्रस्त नहीं है, शख्सियत प्रस्त है। और शख्सियत प्रस्ती जो है बुद्ध प्रस्ती के बराबर है। इसलिए मैं खुदा का खादिम होते हुए, खुदा के बंदा अब्राहम के इस एक्ट पर, इस अमल पर जो खुदा के साथ उसने किया, खुदा ने कहा, खुदा के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदा फरमाता है कि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है, मैं भी तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। एक ही बेटा तूने दरेग नहीं किया, और खुदा देखिए, खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह, उसने भी दरेग नहीं किया और अपने बेटे को मेरी खातर, आपकी खातर सलीब पर वो मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं और आप उस पर ईमान लाकर हलाकत से बचें और हमेशा की जिंदगी पाएं। इस दुनिया में, इस माशरे में जहां कहीं आप जाएं, एक बात बड़ी सख्त लिखी हुई है जो मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन चंद बातें जो यहाँ पे हैं कि खुदा बरकत कैसे देता है। अब्राहम, मैंने तुझे बरकत पर बरकत, क्या बात है अब्राहम, मैंने तुझे बरकत पर बरकत में तुझे दूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मालिक कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। सब कौमें, सिर्फ यार आप नहीं, सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात, काश मैं और आप उसकी बात माने। यहां तक ऐसे नहीं इब्राहिम आ गया, उसमें इससे पहले भी बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारी आजमाइशें आई। एक ऐसा कबीला जिसके साथ नाराजगी थी, अब्राहम और अबीमेलेक, दोनों के दरमियान नाचाकी हुई, नाराजगी हुई, इस वजह से कि कुआं अब्राहम का था, कब्जा दूसरों ने किया, नाराजगी हुई। फिर खुदा ने उनको जोड़ा और उन्होंने आपस में मुआहदा किया। बहुत सारी मुश्किलात से, बहुत सारे मराहल से गुजरकर अब्राहम यहां तक आया, और फिर खुदा ने कहा कि अब मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। मुझे आपको बहुत सारे मराहल से गुजरना पड़ता है, ऐसे नहीं जिन लोगों के घरों में, खानदानों में, शख्सी जिंदगी में पिछले दिनों में प्रॉब्लम्स थी, मैं शख्सी तौर पे भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। खुदा ने आपको उन मुश्किलात में से निकाला, खुदा ने आपको जिंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, और खुदा ने अब्राहम और अबीमेलेक के मुआहदे को और ज्यादा मजबूत किया। और एक अल्फाज से पढ़ना चाहता हूँ, एक आयत, इसलिए तू अब मुझसे खुदा की कसम खा के, तू ना मुझसे, ना मेरे बेटे से, ना मेरे पोते से। कैसी बात है ये, है बाप दादा के मुआहदे जो उस पर कायम रहे। मैं और आप अपने मुआहदे पे कायम नहीं रहते, मैं और आप अपनी बातों पे कायम नहीं रहते, हम फिर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और उसने कहा अब मेरे और आपके दरमियान जो मुआहदा हुआ है, अब तू ना मेरे बेटे से, ना मेरे पोते से, ना मुझसे दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू भी मुझ पर और इस मुल्क पर जिसमें तूने क़याम किया करेगा। मुल्क पर, कौमों पर। जब अंग्रेज और गोरे यहाँ आए ना पाकिस्तान में,
जो दूसरे लोग थे जब आते थे तो वो जो उस वक्त के बादशाह होते थे उनसे चीजें मांग लेते थे तो छोड़ देते थे। लेकिन जब गोरा आया उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें इस मुल्क में कारोबार करने दें। और कारोबार जब उन्होंने इजाजत ले ली तो फिर लाहौर में कारोबार आया और फिर मसीहत भी आया। सुन लें, ऐसे नहीं यार आप यहाँ पे बैठे हुए, जो बड़े लोग थे हमारे उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की। कई लोग कौम परस्त थे, उन्होंने कौम की खातिर सब कुछ किया। कई लोग अपनी जात की खातिर करते रहे, कई लोग अपने खानदान की खातिर करते रहे। लेकिन आए मेरा इस मुआहदे पर देखें, उन्होंने आपस में क्या वादा किया, जो मेहरबानी तूने मुझ पर की वैसी ही तू मुझ पर भी और इस मुल्क पर जिसमें तूने क़याम किया है करेगा। तब अब्राहम ने कहा कि मैं कसम खाऊंगा। अगले अल्फाज सुने अब्राहम ने पानी के कुएं की वजह से, जिसे अबीमलेक के नौकर ने जबरदस्ती छीन लिया था, तो अबीमलेक को झड़का। आज हम झड़कते किसी को तो नफरत करने लगते हैं। उसने कहा कि तू मेरे साथ दगा नहीं करेगा, मैं तेरे साथ नहीं करूंगा। दगा हम भी मसीही, दगा हम भी किसी से कर नहीं सकते। वफा का हमने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मे के वक्त हम अहद कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं, लेकिन पूरे नहीं उतरते। अब्राहम ने उससे कहा, अबीमलेक ने कहा कि मुझे खबर नहीं कि किसने ये काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया, और ना मैंने आज से पहले इसकी बाबत कुछ सुना। गलत फहमी के सबब से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, गलत फहमी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जंगें शुरू हो जाती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत फहमी के सबब से खानदान बर्बाद हो जाते हैं। सुन ले, पूरी बात को सुन लिया करें, तहकीक कर लिया करें। फिर अब्राहम ने उसके साथ एक अहद किया, मैं छोड़ रहा हूं दरमियान में से। अब्राहम ने भेड़ के 7 मादा बच्चों को लेकर अलग रखा और उसको दिया, और उसने कहा इसका क्या मतलब है, क्यों तूने अलग किया, इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि भेड़ के 7 मादा बच्चों को तूने मेरे साथ से लेकर ले, ताकि वो मेरे गवाह हों कि मैंने ये कुआं खरीदा, और 7 मादा बच्चे इसलिए तुझे दे रहा हूं ताकि इनकी नस्ल बढ़े और आगे को तुझे बरकत मिले, तेरे माल मवेशी बढ़ जाएं, भेड़ बकरियां बढ़ जाएं। काश नया रात जिसके साथ मुआहदा करते हैं, बात करते हैं, सुलह करते हैं, सारी बातें छोड़ते हैं, फिर उसके लिए, उसकी तरक्की के लिए भी काम करें। यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों से और अपने लोगों से बातें कर रहे थे सलीब के बारे में, अपनी मौत के बारे में, तो जो करीबी थे ना वो नाराज हो रहे थे। जैसे मैं और आप बॉस कोई बात करें तो हम इतने चहेते होते हैं, इतने वफादार होते हैं कई दफा कि हम अपने बॉस को, अपने उस्ताद को, अपने टीचर को, अपने मालिक को कहता नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि देखें, मैं आया ही इसलिए हूं, इसलिए मैं आपको तालीम देता हूं, देने लगा। खोले जरा बाइबल 31वें आयत में देखूं, पढ़ा करें जरा, देखा करें ऊपर से, मेरी गलतियां भी निकाला करें, मुझे बताया भी करें। यीशु मसीह ने 31वीं आयत में खुद अपनी ज़बान से फिर वो उनको तालीम देने लगा। यीशु मसीह उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए। ये दुखों का दिन है, ये दुखों के अयाम है, बहुत दुख लिखा है। दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार कायन और फकीर उसे रद्द करें। लोगों ने इसको रद्द किया, बराबा को कहा कि इसको छोड़ दे, वो कत्ल किए जाए, और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही, पहले शागिर्दों को बहुत पहले कह दिया कि ऐसा होगा, मगर उसने मुड़कर पतरस ने उसे अलग ले जाकर उसे मलामत की। देखें, यीशु मसीह का शागिर्द उसके करीबी राइट हैंड था पतरस, उसने अपने उस्ताद को, अपने मालिक को मलामत की।
रिब्यूक कहा, त्रास किया, क्यों ऐसे पिता है? तो हमारा मालिक है, ऐसे हो नहीं सकता कि तुझे को कत्ल करे, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मरे, तो हमारे साथ रहेगा। उसने मलामत की, मगर उसने यानी यीशु ने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को फिर मलामत की। पहले पतरस ने की, अब यीशु जी ने की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि ये सोच शैतान की है, ये सोच तेरी नहीं है। ऐ शैतान दूर हो, ये अल्फाज बियाबान में भी खुदा यीशु मसीह ने कहे। क्यों? क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। मैं और आप भी खुदा की बातों की परवाह नहीं करते, आदमी की बातों का ख्याल रखते हैं, उन्हें लब्बैक कहते हैं, उनको ज्यादा मुकद्दम ठहराते हैं और समझते हैं। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत बुलाकर उनसे कहा कि अगर तू मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से, वो मसीही है जो खुदी से इनकार करके उसके पीछे जाता है। हमारे अंदर मगरूरी भी होती है, हमारे अंदर खुदी भी होती है, हमारे अंदर नफरत भी होती है, फिर भी हम कहते हैं मसीही नहीं। मसीही वो है जो खुदी से इनकार कर चुका है। लिखा है यहां पे, अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी स्लीप उठाए, मेरे पीछे हो, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? हम दुनिया की चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, जान का नुकसान कर लेते हैं, अंजाम बुरा होता है, अंजाम बुरा होता है। आखिरी आयत, और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने जलाल में आएगा तो उससे, और मैं और आप भी ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं। ना घबराए, ना परेशान हो, मुआशरे ही ऐसा है, कौम ही ऐसी है, जगह ही ऐसी है जहां खुदा ने मुझे और आपको रखा है। अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि खुदा ने मुझे और आपको मेरे और आपके को बांध के ना तो गिरा दिया पानी में और कहा भी है कि फिर तेरा दामन गीला ना हो। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। खुदा ने ऐसी कौम में, यीशु जी के अल्फाज मेरे नहीं है कि तुम ऐसी कौम में रह रहे हो जो ज़नाकार भी है, खताकार भी है। लेकिन अगर ऐसे लोगों के सामने आप मुझसे शर्माते हैं तो फिर जब मैं अपने जलाल में पाक फरिश्तों के सामने आएंगे आप, तो फिर मैं भी तुमसे शर्माऊंगा। उसने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो जहां खड़े हैं उनमें से बात ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आए और ना देख ले, मौत का मजा हरगिज। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मैं और आप अपने आप को बदलने का अख्तियार रखते हैं। मेरे पास अख्तियार है कि मैं अपने आप को बदलूं, लेकिन मेरे पास ये अख्तियार नहीं है कि मैं आपको बदलूं। सुन ले, सच्ची बात, गैलरी वाले सुन ले, मैं और आप अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरे को नहीं बदल सकते। मेरे पास अख्तियार नहीं है कि मैं इसको बदलूं, मैं अपने आप को तो बदल लूं। सादा सी बात है, कलाम के शीशे की है। खुद को बदलना मेरे और आपके अख्तियार में नहीं है, कि है खुद को बदलना हमारे अख्तियार में है। किसी को बदलने का अख्तियार मेरे पास नहीं है। अगर आप घर में, खानदान में हालात बदलना चाहते हैं तो फिर अपने आप को मुकम्मल तौर पे उसके हाथों में दे और इन बातों का ख्याल रखें कि मैं अपने आप को तब्दील करूं, अपनी सोच को बदलूं, ताकि मुआशरा तब्दील हो। घर से शुरू करें। और यीशु मसीह ने अब्राहम को, खुदा ने अब्राहम को ये बरकतें इसीलिए दी
क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे का दरेग नहीं किया, तो यीशु मसीह के बाप ने, खुदा ने भी अपने बेटे का दरेग नहीं किया, उसने अपने बेटे को ही दे दिया ताकि वो मेरी और आपकी खातिर सलीब पर दुख सहे और मैं और आप उसके मार खाने से शिफा पाए, आजादी पाए, रिहाई पाए, छुटकारा पाए, तंदुरुस्त हो जाए और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आए हम खुदा की मदद सराई करें। सियालकोट इंटरनेशनल गीतों की किताब सबूर नंबर 119, तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश बेजा, तेरे नजराने शुक्रगुजारियां खुदा की शुक्रगुजारी। सबूर नंबर 119।
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि अपने हदिये नजराने, शुक्रगुजारियाँ, मनाजातें, मन्नतें तेरे हुजूर आज सुबह फिर गुजरान सके। तो हम सबको हमारी खुदी से इनकार करना सिखा, ताकि हम आजिज़ी, सारी हलीमी और फरोख्ती के साथ तेरे हुजूर चलते रहें और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। चर्च के एक एक मेंबर के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए, हाजिर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो बैरून मुल्क हैं हम उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो बच्चे तालीम और इल्म हासिल करने के लिए गए हैं भी कामयाबी से हमदरार कर, इस हदिये नजरानी की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे। आने वाले वक्त में हम सबको अपनी पनाह में लिए रख, ताकि सेंट जॉन चर्च का घराना जब तेरे नाम से नामजद है तो इसमें बड़े तरक्की करे और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। बड़ा मेहरबानी, जब तक कलमाते बरकत नहीं होते आप चर्च में बैठेंगे। सफा नंबर 14 निकालें। आइए सुआयचे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने रूह कुद्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदा तुम्हारे साथ हो। अपने दिल आदमी बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मतलब रज़नी खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए, डायरेक्टर ऑफ राइवल के लिए, बिशप ऑफ राइवल के लिए, तमाम अदारों के लिए, संडे स्कूल के लिए, क्वायर के लिए, बच्चों के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रबीन सब बोले कद्दूस 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 खुदा रब्बुल फ़ात, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आए खुदा ताला तेरा ही जलाल, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलने वाला पर होशाना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु को पहुँचा, ताकि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर शाह कर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी काबिल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, वह नई बरकत पर, वह दौलत पर, वह खालिद पर, मस्लिम जेम्स पर, वह अर्नस पर और बहुत सारे लोग जो कमजोरी की हालत, उन सब पर रहम कर। अपनी आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूं तो मैं सही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नियत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बंदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی آج میں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تک دے رہی ہیں۔ آئے ہم خدا کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خدا، ہم اپنی راستہ بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ اور بڑے رحمت پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق میں نہیں کہ وہ ٹکڑے جو تیری میز پر سے کرتے ہیں چنیں، لیکن تو خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لائق کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ کا جسم و روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے بندے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بندے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بندے تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خدا سے اطمینان مانگیں اور ایک دوسرے کی طرف ہاتھ کر کے ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیں۔ بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں۔ ایک نیا خاندان پیچھے بیٹھا ہے، میں شاہبانی کے بعد انہیں سامنے بلاؤں گا تاکہ ہم انہیں آج ویلکم کر سکیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو تیار کر کے لائے ہیں برائے مہربانی بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں۔ کچھ لوگ اس